Hello, good morning everyone. Today we are starting the last chapter of this subject history, kings, paintings, and books. So let's start. Marutasamy and the Iron Pillar. Marutasamy was so excited his brother had propelled his wheelchair all along the dusty stony path, past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. It had been tough, but now he was here, in front of the famous Iron Pillar. It was an unforgettable experience. The Iron Pillar. The Iron Pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craftspersons. It is made of iron 7.2-meter high and weighs over 3 tons. It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty. Chapter 11. What is amazing fact that the pillar has not rusted in all these years. आयरन पिलर जो कि मेहरौली दिल्ली में है वो भारतीय कलाकारों का एक रिमार्केबल यानी कि यादगार उदाहरण है उनकी कला का। ये आयरन से बना हुआ 7.2 मीटर हाई और इसका वेट लगभग 3 टन है। ये 1500 साल पहले बना था और हमें तारीख इसलिए पता है क्योंकि इसके जो शिलालेख हैं उन खम्भों पर शासक का नाम जो कि चंद्र जो कि शायद गुप्ता राजवंश को बिलोंग करते थे उस पर अंकित है। और अमेजिंग फैक्ट ये है कि पिलर का अभी भी इतने सालों में भी कुछ भी रस्टेड नहीं है। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन. The skills of the craftsperson are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas. The word stupa means a mound. While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. Generally, there is a small box placed at the center or heart of the stupa. This may contain bodily remains such as teeth, bones, or ashes of the Buddha or his followers, or things they used, as well as precious stones and coins. This box, known as a relic casket, was covered with earth. Later, a layer of mud brick or baked brick was added on top, and then the dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs. उनकी कुशलता और कला का जो इमारतें हैं वो अभी भी सरवाइव कर रही हैं, जैसे कि स्टूपा का मतलब होता है माउंड। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्टूपास, अलग अलग तरह के स्टूपास होते हैं, जैसे कि कुछ गोल तो लंबे, कुछ बड़े, कुछ छोटे। इनमें कुछ कॉमन यानी कि कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जनरली इनमें एक छोटा बॉक्स होता है जो कि सेंटर या फिर उसको हार्ट ऑफ द स्टूपा कह सकते हैं, जिसमें उनके बॉडीली जो बची हुई चीज़ें होती हैं जैसे कि उनके दांत, हड्डियां या राख बुद्ध और उनके अनुयायियों के, या फिर वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे, और कीमती पत्थर और सिक्के। ये बॉक्स रेलिक कास्केट के नाम से भी जाना जाता है। वॉज कवर्ड विद अर्थ, लेटर अ लेयर ऑफ मड और ब्रिक, मिट्टी और ईंटों की एक परत, बेक्ड ब्रिक यानी कि पकी हुई ईंटें टॉप पर लगा दी जाती हैं, और आखिर में एक डोम यानी कि एक गोल स्ट्रक्चर ढांचा इसको बना दिया जाता है। कभी कभार ये कवर्ड भी होता है स्टोन और स्लैब्स से। Often a path known as the Pradakshina Path was laid around the stupa. This was surrounded with railings. Entrance to the path was through gateways. Devotees walked around the stupa in a clockwise direction as a mark of devotion. Both railings and gateways were often decorated with sculpture. Find Amravati on map 7, page 113. This was a place where a magnificent stupa once existed. Many of the stone carvings for decorating the stupa were made about
2,000 years ago. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. प्राय एक रास्ता होता था जो कि प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था, जो कि स्तूपा तक लेके जाता था। ये चारों तरफ से रेलिंग से घिरा हुआ होता था। जो सबसे पहले अंदर घुसने वाला जो एंट्रेंस का रास्ता होता था वो गेटवेज के द्वारा होता था। अनुयायी या उनको मानने वाले श्रद्धालु स्तूपा के अंदर आते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस चीज़ को उनकी डिवोशन का एक मार्क माना जाता था। दोनों जो रेलिंग्स और गेटवेज होते थे वो मूर्ति कला से सजे हुए होते थे। अमरावती के मैप में देखें, ये एक वो जगह थी जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्तूपा पहले कभी हुआ करता था। बहुत से पत्थरों को काटकर सजाया गया स्तूपा लगभग 2000 साल पहले बना था। दूसरी बिल्डिंग्स को खाली यानी खोखला छोड़ दिया गया था उन कृत्रिम गुफाएं बनाने के लिए। उनमें से कुछ को बहुत ही खूबसूरती से मूर्तिकला और रंग बिरंगी दीवारों से सजाया गया था। Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva, and Durga were worshipped in these shrines. The most important part of the temple was the room known as Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity. Often as at Bitargaon, a tower known as the Shikhara was built on top of the पहले के कुछ हिंदू मंदिर भी इस समय में बनाए गए थे। डाइटीज जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, इनकी पूजा की जाती थी। इनमें सबसे जो मुख्य भाग होता था मंदिर का वो होता था गर्भगृह के नाम से जाना जाता था, जिसमें जो उनके मुख्य मानने वाले इष्ट या भगवान होते थे उनको रखा जाता था। और यहाँ पर जो पुजारी होते थे वो धार्मिक रीति रिवाज और रिचुअल्स को पूरा करते थे, और डिवोटीज अपनी पूजा आराधनाएं करते थे अपने इष्ट देव के आगे। Garbhagriha, to mark this out as a sacred place, building shikharas required careful planning. Most temples also had a space known as the mandapa. It was a hall where people could assemble. कुछ मंदिरों में मंडप के नाम की भी एक खाली जगह छोड़ दी जाती है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। Find Mahabalipuram and Aihole on map. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shows here. महाबलीपुरम और एहोल को नक्शे में देखें। यहाँ पर कुछ बहुत ही तराशे गए पत्थरों के मंदिर हैं जो कि इस कस्बे में बनाए गए थे। Some of these are showed here. इनमें से कुछ यहाँ दर्शाए गए हैं। How were stupas and temples built? There were several stages in building a stupa or a temple. Usually kings or queens decided to build these as it was an expensive affair. First, good quality stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. Here, these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings, and then these had to be placed in precisely the right position. सबसे पहले कुछ यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स जो कि स्तूपा और मंदिर के नाम से जानी जाती थी। ज़्यादातर राजा और रानी इनको बनाने का सोचते थे क्योंकि ये बहुत ही कीमती काम होते थे। सबसे पहले अच्छी गुणवत्तापूर्वक पत्थर को ढूंढना और उसके बाद में उनको एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना, बहुत ही सावधानी पूर्वक जगह को देखना जहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जानी है। उसके बाद इन ब्लॉक्स को वहाँ पर रखना और उनकी कटाई छटाई के बाद में उनको स्तंभों का आकार देना। पैनल्स फॉर वॉल्स, दीवारों के लिए देखना।
फ्लोर्स यानी कि उनकी जो ज़मीनी सतह है वो बनाना, और छत का निर्माण करना। और अंत में इन सबको सही पोजीशन पर रखना। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्स पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। राजा और रानी अपने खजाने में से उन शिल्पकारों को पैसा देते थे जो कि इन खूबसूरत ढांचों को तैयार करते थे। बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूपा दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट्स which were used to decorate the buildings. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. और जब श्रद्धालु इन मंदिरों या स्तूपास को देखने के लिए आते थे तो वो अक्सर अपने साथ तोहफे लेकर आया करते थे। ये तोहफे उन इमारतों को सजाने के लिए होते थे। उदाहरण के तौर पर एक एसोसिएशन आइवरी के वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल, इनको एक बहुत ही खूबसूरत गेटवेज सांची की ओर से दिया गया था, सांची में दिया गया था। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन। और जो इनको पे करते थे उनमें व्यापारी, किसान, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स और सैकड़ों women who are known only by their names which were inscribed on pillars, railings and walls। आदमी, सैकड़ों आदमी और वे औरतें जो कि सिर्फ उनके नाम से जानी जाती थीं, जो कि उन स्तंभों, रेलिंग और दीवारों पर इंस्क्राइब किए गए हैं। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। तो जब भी आपको मौका मिले इन जगहों पर घूमने जाने का, तो देखें कि कितने सारे लोगों ने यहाँ पर इनको बनाने के लिए काम किया और इनको सजाया। पेंटिंग, फाइंड अजंता ऑन मैप 7। This is a place where several caves were hollowed out of the hills over centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with paintings. Here are some examples. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. The colors, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and minerals. The artists who created these splendid works of art remain unknown. मैप 7 में अजंता को देखें। यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर कुछ गुफाएं खोखली और खाली पड़ी हुई हैं। अधिकतर इनको जो बुद्ध साधु होते थे उनके लिए बनाया जाता था। सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, इनमें से कुछ को पेंटिंग्स के द्वारा सजाया गया था। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं क्योंकि ये गुफाएं अंदर से बिल्कुल अंधेरे में होती थी। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेज। तो अधिकतर जो इनकी पेंटिंग्स है वो टॉर्चेस में ही की गई है। जो कलर्स 1500 साल पहले आज से किए गए थे वो पौधों और मिनरल्स से बने हुए थे, और वे आर्टिस्ट जिन्होंने इनको बनाया था उनके कलाकारी को आज भी उनकी कला अननोन है, यानी कि उससे आज भी कई लोग आज भी उनकी कला अनभिज्ञ है। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, some of the best known epics were written during this period. Epics are grand, long compositions about heroic men and women and include stories about gods. इस समय में कुछ बहुत ही बड़े एपिक्स लिखे गए। एपिक्स बहुत ही बड़े लंबे कॉम्पोजिशंस थे जो कि उस ज़माने के हीरोइक मैन और आदमी और औरतों के लिए लिखे गए थे। इसमें भगवान की कहानियाँ भी शामिल थी। फेमस तमिल एपिक द सिलापादिकरम वॉज कंपोज्ड बाय अ पोइट नेम्ड इलांगो। इलांगो के द्वारा एक तमिल एपिक लिखा गया अराउंड 18 years एगो, लगभग 1800 साल पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवालन। ये एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम कोवालन था, हु लिव्ड इन फुहार एंड फेल इन लव विद अ कोर्टिसन नेम्ड माधवी।
जो कि फुहार में रहता था और एक कोर्टिसन के प्यार में पड़ गया जिसका नाम माधवी था। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनागी, अपनी वाइफ को दरकिनार करते हुए। लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट फुहार एंड वेंट टू मदुराई, और बाद में वो और उसकी पत्नी कनागी फुहार को छोड़कर मदुराई चली गई। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग, जहां पर उनको गलत तरीके से पांड्या किंग के दरबारी ज्वेलर के द्वारा गलत आरोप में, चोरी के आरोप में फंसा दिया गया। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। कनागी, हु स्टिल लव्ड हिम, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of the Madurai. राजा ने उसको मौत की सजा बताई गई। कनागी जो उससे अभी भी प्यार करती थी, वो अभी भी गुस्से में भरी हुई थी इस इनजस्टिस से, और इसीलिए उसने पूरे शहर मदुराई को तबाह कर दिया। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दी सिलापादकरम। हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कनागीज ग्रीफ। यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से कवि ने कनागी की ग्रीफ को डिस्क्राइब किया है। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, इज इट राइट दैट बॉडी फेयरर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर in the dust? Is it in the red glow of the twilight your handsome chest framed with wreath lies thrown down on the bare earth while I remain alone and abandoned to despair? Is there no God? Is there no God in this? Can there be a God in a land where the sword of the king is used to murder of innocent stranger? Is there no God? No God. Another Tamil epic, the Mani Mekalai, was composed by Satanar around 1400 years ago. एक दूसरा तमिल एपिक जिसका नाम मनी मेकलाई, जो कि सतनर द्वारा 1400 साल पहले कंपोज किया गया। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ द कोवलन एंड माधवी। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। दिस ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन वर लॉस्ट to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. Other writers such as Kalidas, about whom you read in chapter 11, wrote in Sanskrit. दूसरे लेखक जिन्होंने, जैसे कालिदासा, जिनके बारे में आप चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं, उन्होंने संस्कृत में लिखा। Recording and preserving old stories. A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. These include the Purans. Puran literally mean old. The Purans contain stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga or Parvati. They also contain details on how they were to be worshipped. Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. The Purans were written in simple Sanskrit words and were meant to be heard by everybody, including women and Shudras, who were not allowed to study the Vedas. They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. बहुत सारे धार्मिक हिंदू ग्रंथ भी लिखे गए इसी समय में, जैसे कि पुराण का लिटरली मतलब ही पुराना है। पुराण में देवी देवताओं की कहानियां हैं, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती की। इसमें किस तरीके से पूजा करनी है उसकी एक पूरी डिटेल दी गई है। किस प्रकार से वर्ल्ड यानी कि विश्व की उत्पत्ति हुई और राजाओं के बारे में है। पुराण सिंपल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और जिसका मतलब है कि वो सबके द्वारा सब उनको सुन सकते हैं, जिसमें औरतें और शूद्रास जो कि वेदों की अध्ययन नहीं कर सकते, उनका भी लिखा गया है कि वे भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। ये मोस्टली मंदिरों में बोले जाते हैं पुजारियों के द्वारा और लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। टू संस्कृत एपिक्स, द महाभारत एंड रामायण, हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो संस्कृत के एपिक महाभारत और रामायण काफ़ी लंबे समय से, बहुत पुराने समय से
लोकप्रिय हैं। सम ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दीज स्टोरीज, और आप में से कुछ लोग इन कहानियों से पहले से आप इनको जानते भी होंगे। द महाभारत इज अबाउट अ वार फॉट बिटवीन द कौरवाज एंड पांडवाज। महाभारत एक युद्ध की कहानी है जो कि कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। हु वर कजन्स, जो कि कजन्स थे। This was a war to gain control to the throne of the Kurus and their capital, Hastinapur. The story itself was an old one but was written down in the form in which we know it today. About 1500 years ago, both the Purans and the Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyas. The Bhagavad Gita, about which you learnt in chapter 10, was also included in the Mahabharata. महाभारत एक कहानी जो कि कुरुओं के वंश, उनकी राजधानी हस्तिनापुर के ऊपर सिंहासन प्राप्त करने की थी। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन जिस तरीके से ये लिखी गई है 1500 साल पहले लिखी गई थी, पर जिस प्रकार ये लिखी गई है लोग आज भी इससे जुड़ पाते हैं। पुराण और महाभारत दोनों व्यास के द्वारा लिखे गए। भगवद गीता, अबाउट विच यू लर्न, जिसके बारे में आप पिछले चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं, वो भी महाभारत में शामिल है। द रामायण इज अबाउट राम, रामायण राम के बारे में। अ प्रिंस ऑफ कोसला हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, जिसको वनवास के लिए भेजा गया था। हिज वाइफ सीता वॉज अबडक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका, उनकी पत्नी सीता जिनको लंका के राजा के द्वारा अपहरित कर लिया गया था, जिसका नाम रावण था। एंड राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक, और राम को एक युद्ध लड़ना पड़ा उनको वापस पाने के लिए। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या, वे जीते और अयोध्या लौट कर आए। द कैपिटल ऑफ कौशला आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के बाद वो अयोध्या, जो द कैपिटल ऑफ कौशला, लौट कर आए। लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। महाभारत की तरह ये भी एक पुरानी कथा है जो कि अब लिखी गई थी। वाल्मीकि इज रिकग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, और वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक के रूप में जाना जाता है। देर आर सेवरल वर्जन्स, मैनी ऑफ विच आर परफॉर्म्ड ऑफ द महाभारत एंड द रामायण पॉपुलर amongst people in different parts of the subcontinent. Find out about a version in your state. Stories told by ordinary people. Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. साधारण लोग भी कहानियाँ कहते हैं, लिखते हैं, पोएम्स, कविताएं, गाने लिखते हैं, नाचते हैं और नाटकों को भी परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज द जातकास एंड द पंचतंत्र, और इनको भी कहानियों की तरह संरक्षित किया जाता है, जैसे कि जातकास और पंचतंत्र, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। स्टोरीज फ्रॉम द जातकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस सच एज अजंता। हियर इज वन सच स्टोरीज। द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रेट मंकी किंग। एक समय की बात है, एक महान मंकी राजा था। हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन द हिमालयाज, जो गंगा के किनारे हिमालयाज में रहता था। विद 80,000 फॉलोअर्स, जिस अपने 80,000 फॉलोअर्स यानी कि अनुयायियों के साथ। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री, वे सब एक खास आम के पेड़ से खाना खाते थे। विच वर वेरी स्वीट, जो कि बहुत मीठे थे। सच exquisite mangoes did not grow on the plains. One day a ripe mango fell into the river and floated all the way to Varanasi. एक बार उनमें से एक पका हुआ आम नदी में गिर गया और बहता हुआ वाराणसी पहुंच गया। There the king of the city who was bathing in the river found it. वहाँ पर जो राजा उस नदी में स्नान कर रहा था उसको वह मिला। एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड, और वो बहुत ही खुशी से चौंका उसको खाने के बाद। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयाज। और उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो उस पेड़ को कहीं से भी करके ढूंढ सकें।
There the king and his courtiers had their fill of mangoes at night. At night, the king discovered that the monkeys were also feast on the fruit and decided to kill them. और रात में जब उन्होंने ये पाया कि जो राजा है बंदर भी उससे जब उसने ये पाया कि वे बंदर भी उसी पेड़ के फलों को खाते हैं तो उसने उनको मारने का निश्चय किया. However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers. जबकि बंदरों का राजा अपने अनुयायियों को बचाने के लिए कुछ योजना बना रहा था. He broke off branches of the mango tree. उसने उस आम के पेड़ की टहनियों को तोड़ दिया and tied them to form a bridge. और उनको एक पुल के रूप में बांध दिया across the river and held on to one until all his followers crossed over. और इस तरीके से जब उसने पुल बना दिया और एक के बाद एक उन लोगों ने अनुयायियों के साथ उसको पार किया. Exhausted with the effort, he fell down and lay dying. The human king saw what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey. When he died, the king mourned his death and paid him full respect. और जब वे उसको पार कर रहे थे तो नदी में गिरने से मर गए और जब वह मर जाता है तो वो उसको पूरा सम्मान देता है. दिस स्टोरी इज शोन ऑन अ piece of sculpture found from a stupa at Bharat in central India. Can you identify which parts of the story are shown in the sculpture? ये कहानी स्तूपा भारत के जो कि सेंट्रल इंडिया में स्थित है वहाँ के स्तूपा पे दी गई है. क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से भाग इस स्कल्पचर में दिखाए गए हैं? Writing books on science. This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam. यही वह समय था जब आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी थे उन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम. He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. उन्होंने ये पता लगाया कि दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से होते हैं. इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे. ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल. उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की गणना की. ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज नियरली एज एक्यूरेट as the formula we use today. 0. While numerals had been used earlier. Numerals का पहले से इस्तेमाल होता था जब mathematician in India now invented a special symbol for 0. और गणितज्ञों ने एक नया सिंबल तैयार किया 0 के लिए. This system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. और यही सिस्टम पहले अरबियों के द्वारा अडॉप्ट किया गया और उसके बाद में पूरे यूरोप में फैल गया. इट कंटिन्यूज टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. द रोमन्स यूज्ड अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग 0. ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट. Elsewhere, paper has become a part of our daily lives. The books we read and printed on paper and we use paper for writing. Paper was invented in China about 1900 years ago by a man named Kailun. He beat plant fibers, cloth rope and the bark of trees, soaked these in water and then pressed, drained and dried the pulp of create paper. Even today, handmade paper is made through a similar process. The technique of making paper was a closely guarded secret for centuries. It reached Korea about 1400 years ago and spread to Japan soon after. It was known in Baghdad about 1800 years ago. From Baghdad, it spread to Europe, Africa and other parts of Asia including the subcontinent. पेपर हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है. हम डेली प्रिंटेड कागज़ को पढ़ते और उस पर लिखते हैं. कागज़ का सबसे पहले आविष्कार 1900 साल पहले
चाइना में हुआ था एक आदमी के द्वारा जिसका नाम काई लुन था। उसने पौधे से निकलने वाले फाइबर, क्लोथ और रोप और बार्क ऑफ द ट्रीज को पानी में भिगोकर और उसके बाद उसको दबाकर सुखाकर इस तरीके से कागज़ को तैयार करा। यहाँ तक कि आज भी जो हाथ से बना हुआ कागज़ है वो इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है और काफ़ी सालों तक ये प्रक्रिया छुपी रही। इसके बाद 1400 साल पहले ये प्रक्रिया कोरिया पहुंची और वहाँ से जल्दी ही जापान में फैल गई और उसके बाद से बगदाद में, और इस समय लगभग सभी जगह पर कागज़ का उपयोग किया जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। थैंक यू।